Good afternoon everybody. Welcome to Dream IS. So today we are going to start day 4 of the PYQ series जो आपा start ਕੀਤੀ ਸੀ. So let's move to the first question. First question is, the impeachment of the president is carried by which one of the following? Impeachment of the president ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. What you mean by impeachment? You mean by it like a removal of a president. ठीक है, जो किहड़े आप आर्टिकल दे विच कवर करते हैं, आर्टिकल 61 tell us about the removal of the president. What is the question that who carried the removal process of the president? So what are the options? Attorney General, member of the legislative, parliament or the prime minister? So obviously what is the answer will be the parliament, जो कि either house जो process है start होता है with either house and 1/4 of the member, and after it president get 14 days. ठीक है, on what grounds impeachment होती है? If any president attempt non-constitutional work, on that grounds अपने removal होगी president दी, and after it with either house process start होगा, moving forward with 1/4 of the member and next president with 14 days, and after it special majority in one house as well as to the second house special majority, and hence the removal. ये सारा process होता है. So what is the answer? Answer is C कि जड़ा अपना president अगर removal हो कौन करता है? अपना parliament, that is C. Moving forward, okay. सो अगर आप प्लेटफॉर्म की गल करिए, हर एक एस्पायरेंट जो कि जिन्हें ड्रीम देखी है रिगार्डिंग UPSC IAS और PCS दे रिगार्डिंग, एंड they really want to learn from a mentorship and अच्छे मतलब guidance उन्होंने चाहिए है. So we provide a basic structure, एक अच्छा तरीके नाल structure which is present here, course structure in which 12 months of learning. We provide monthly schedules, monthly हर एक subject ਨੂੰ cover ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, live, online as well as offline classes. Even you get recorded classes here. ठीक है, subject wise coaching, study material, current affairs, and मेन थिंग 100% अटेंशन इज़ गारंटीड. ठीक है, 100% गारंटी मिलती है, अटेंशन मिलती है अच्छे कोर्सेज नाल, अच्छे स्ट्रक्चर नाल इन दिस प्लेटफॉर्म. एंड टू कॉन्टैक्ट अस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड इफ़ यू वांट टू विजिट अस ऑल्सो यू कैन विजिट हेयर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन वाल देखिए. Question number 2, which of the following statement is correct? If we are talking about DPSP, DPSP की है, these are some guidelines we all know. Before coming to the question, if I'll explain, DPSP ਇਹ ਜਿਹੇ direct principles जो कि part 4th अपने constitution ਵਿੱਚ mentioned है, उन वो statements कि what they will tell us, let's see. Directive principles are meant to establish political democracy, social democracy और economic democracy. So तीन टाइप्स ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ what DPSP actually provide us, whether political, social or economic. But we have studied the 4th chapter, we know the guidelines of the principles, we know that DPSP always provide us social as well as economic justice. These are some of the guidelines which are important for the government to keep in mind when they have to frame the laws कि वो social welfare as well as economic justice ਨੂੰ देख के frame कर पान. So what DPSP establish? Social as well as economic democracy. The obviously answer is 2 and 3. Political democracy is not there. उन्हों की इंटेंशन कभी भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डेवलप करना या फिर एस्टैब्लिश करना नहीं है. सो आंसर इज 2 as well as 3. आंसर विल बी B. मूविंग फॉरवर्ड B. नेक्स्टली अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. मनी बिल, फाइनेंशियल बिल. Now if we'll talk about money bill, bills the regarding question, very interesting question. Money bill the article 110th we all know. Money bill the regarding हम कुछ statements देखते हैं, what is true, what is false. Money bill can be introduced in Lok Sabha. Obviously ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ money bill ਇੱਕ ਇਹੋ bill ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ privilege ਸਿਰਫ lower house ਨੂੰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ introduce ਕਰਨ ਦਾ. ਰਾਜ ਸਭਾ can't introduce money bill. First statement is automatically correct. Money bill is a financial bill. Financial bill.
फाइनेंशियल बिल हमेशा कवर करते हैं टॉपिक्स रिगार्डिंग टू फाइनेंस, बजट एंड ऑल एक्सपेंडिचर दिस, बट दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड वन ऑफ इट इज मनी बिल। अपन पता है जो फाइनेंशियल बिल्स ने including money bill, financial category 1 under which we have studied 117th article first part ਤੇ financial category B part, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 117th article 3 स्टडी करते हैं। तो मनी बिल ऑब्वियसली फाइनेंस का पार्ट है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट इज ऑल फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट यू थिंक, is this statement correct? All the financial bills, we are talking regarding every financial bills, मतलब ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਪਾਰਟ 117 ਆਰਟੀਕਲ 3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਓਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਟ only in the case of consideration, not introduction. So automatically we have read all to आएगा नहीं, automatically the answer is incorrect. So what is the answer? 1 and 2. So the answer is B. मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गया। अभी कमिंग बैक टू सम राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन हैज provided various rights and safeguards to women in the context which of the following article। अभी वुमेन के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन दी जा रही है, मतलब वुमेन के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन में फोकस देते हुए बताया है कि आर्टिकल विच वन ऑफ द आर्टिकल इज करेक्ट इफ वी specify or give importance in the context of women, which what are the rights or safeguards। so article 15, 16, 24th 3D, what which statement is correct? so automatically तीनों ही सही हैं। अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 हमें क्या बताता है? 15 टेल अस दैट हमने जो वर्ड्स पढ़े थे दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इन द केस ऑफ सेक्स, जेंडर, ठीक है, बर्थ प्लेस, कास्ट, क्रीड, ऑल दिस थिंग्स। सो ऑटोमेटिकली वुमेन कम्स इन द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, उनको राइट मिला। 16 में हम पब्लिक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी सबके लिए वैलिड होगी, नो मैटर मैन और वुमेन। 22(4)(3)D 1/3 रिजर्वेशन इन द केस ऑफ स्पेशली म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह की अगर हम बात करें कि वुमेन्स को स्पेशल फोकस दी, स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर डाला गया 1/3 रिजर्वेशन। तो ये तीनों चीज़ें, ठीक है, तीनों चीज़ें दैट वी आर कवरिंग ऑटोमेटिकली हेल्प्स एंड कम इन द पार्ट ऑफ सेफगार्ड ऑफ द वुमेन राइट। सो ऑटोमेटिकली all the three statements are correct. so 1, 2 and 3 answer will be D. So see, answer is D. Moving forward, which of the following, again अभी DPSP के रिगार्डिंग आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ओके, डीपीएसपी में ऐसी 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी रिगार्डिंग लिबरलिज्म, गांधीज्म और इंटेलेक्चुअल्स की, मतलब इनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। अभी उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या चीज़ डाली है रिगार्डिंग लिबरलिज्म, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स दैट वी विल इंक्लूड। डज एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6, ओके, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव पब्लिक सर्विसेज, ओके, encouraging settlement of international disputes by arbitration। so what is the answer? Answer will be obviously 3, all the 3 will be a part of liberalism principles, ठीक है, तीनों ही आएंगे क्योंकि लिबरलिज्म में क्या होता है, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म व्हाट टेल्स अस, इट टेल्स अस इक्वालिटी, इट टेल्स अस लिबरल आइडियोलॉजी टूवर्ड्स अस, ठीक है, फ्रीडम, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन, ये भी होना चाहिए, 45 आर्टिकल हमें बता रहा है, सेपरेशन वाला पॉइंट भी है, इनकरेजिंग इंटरनेशनल मीन्स पीस, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिबरल प्रिंसिपल। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑटोमेटिकली व्हाट इज द आंसर? D, 1, 2 and 3. Coming next, which of the following Supreme Court decisions stated that DPSP cannot override fundamental rights? अभी थर्ड क्वेश्चन आ गया, बट ये थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन स्पेसिफाइज, यू गिव इम्पोर्टेंस अबाउट द स्पेशल केस दैट वाज हैपेंड। एक ऐसा केस हुआ था जिसने क्या बताया कि जो हमारा डीपीएसपी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे जो संविधान में हमारे राइट्स हैं उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। ऐसा स्पेशल केस है
है और वो कौन सा है, दैट यू हैव टू टेल वेदर स्टेट ऑफ मद्रास और केशवनंदा भारती केस, मिनेर्वा मिल्स और कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. Whenever we'll talk about cases, so in the perspective of polity, in the background of UPSC or any another PCS question paper perspective, cases are always given much importance. So every class I'll try कि 1 or 2 question I should keep for revision, for your revision specially in the perspective of cases if I'm talking about. अभी ये कौन सा केस था जिसने क्या कहा कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स को हमेशा बैलेंस में रखो, ठीक है. DPSP कांट ओवर रूल आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. तो वो था मिनेर्वा मिल्स केस, 1980 की बात है, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था ये केस के अकॉर्डिंगली कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, राइट. नो वन कैन, मतलब DPSP जो हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी गाइडलाइंस है, इसका मतलब ये नहीं है अगर वो इंपॉर्टेंट है देन दे विल ओवर रूल आर फंडामेंटल राइट्स. ऑल राइट, मूविंग नेक्स्ट, आंसर इज C. Which of the following is mandatory eligibility? Not the mandatory eligibility to be a governor of the state. Citizen of India should be 30 years, must not hold any office of profit. He is appointed by the President of India. अच्छा, गवर्नर की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट में हमारा ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो हमारा यूनियन लेवल पे आता है, और साइमल्टेनियसली अगर हम स्टेट की बात करें व्हाट वी विल सी, गवर्नर उसके पैरेलल आएगा. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट, सम मोस्टली आर इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नर एज वेल. तो सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली गवर्नर है देश का, इंडिया का नागरिक तो होना ही चाहिए, ऑप्शन इज करेक्ट. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अभी जो बंदे ने प्रॉफिट के इंटेंशन से काम करेगा ऑटोमेटिकली इट्स नॉट द क्राइटेरिया टू बी अ गवर्नर, ठीक है. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी करेक्ट, कि हमारी जो अपॉइंटमेंट, हमारी जो पावर्स है प्रेसिडेंट की, उनमें से एक पावर है कि उसकी अपॉइंटमेंट. तो वो प्रेसिडेंट काफ़ी अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट करता है, जिनमें से एक अथॉरिटी किसकी होती है, गवर्नर की. सो ऑटोमेटिकली आंसर इज बी, शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज. बट दिस इज इनकरेक्ट. वाई? हमेशा गवर्नर की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 35 ईयर्स होती है, 30 ईयर्स नहीं होती. ऑल राइट, सो आंसर इज बी बिकॉज दे हैव सेड नॉट मैंडेटरी. जो एलिजिबिलिटी नॉट मैंडेटरी है, तो आंसर इज बी. सी, बी. मूविंग फॉरवर्ड विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अच्छा, ये तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के, दिस इज द बेसिक वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, जो आपने सॉल्व करना है, कमेंट्स में बताना है. विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी ऑल नो फ्लैशबैक 1946, कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वर द चेंजेस, कौन से चेंजेस आए थे जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में. सो लेट्स सी सम ऑफ द ऑप्शंस. It empowered the assembly to abrogate any law made by the British Parliament in relation to India. Okay. Conferred the legislative powers over the assembly. So in दोनों statement में which of the statement is correct? You have to tell 1, 2, both or neither. ठीक है? In perspective of the Constituent Assembly. So this is the question of the day. Answer you have to tell. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अभी एक्शन फॉल्स विद द जुरिस्डिक्शन, मतलब जो पावर्स उसके अंडर आती हैं. कैग मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हमको पता है हमारे इंडिया का जो अकाउंटेंट होता है, ठीक है, हमारी स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल वन ऑफ द स्पेशल अथॉरिटी. Assertions and certifies the net proceeds of any tax or duty, issues money from consolidated fund to various department, approve the withdrawal of money by the executive from the public exchequer. So what is the answer? हाँ जी, what do you think? क्या की jurisdictions के accordingly बताना है, क्या की powers के accordingly हमने आंसर बताना है. So क्या आंसर आएगा?
सो द आंसर विल बी ओनली 1. वाई? क्योंकि असर्शन एंड मतलब क्या की क्या रोल क्या है, असर्शन एंड सर्टिफाई करना ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स, या फिर कोई टैक्स या फिर ड्यूटी जो लगी है उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन देनी, ठीक है. बट इफ विल टॉक अबाउट इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, नहीं, ये भी उसका पार्ट नहीं है. अप्रूव द विड्रॉल ऑफ द मनी बाय द, अप्रूवल करना मनी का मतलब विड्रॉल, जो पैसा विड्रॉ हो गया, ठीक है, बाहर आ गया, बाय द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर. तो हमने बेसिकली क्या के रोल्स पढ़ने हैं कि उनकी क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है. तो हमारा आंसर है ए, ओनली 1. This both statements are incorrect, 2nd and 3, in the perspective of jurisdiction of CAG, if I'm talking about, right? Answer is A. Moving to the last question, which case determined the preamble is a part of the constitution? Preamble, which is the very ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें 2 केस के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान में रही थी बातें. दैट वाज बेरूबरी केस 1960 एंड केशव नंद भारती केस 1973, जिसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसने हमें 3 वर्ड्स दिए थे, राइट. बट अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा केस है? तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर 1973 में जो हमारा केशव नंद भारती केस हुआ था, दिस केस वाज बेसिकली मेजरली इंपॉर्टेंट दैट हाईलाइट्स द बेसिक डॉक्ट्राइन. उन्होंने क्या बताया केशव नंद भारती केस में? हमें क्या पता लगा कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, ठीक है. प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट हो सकती है ऑब्वियसली, बट विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना हिलाते हुए, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक डॉक्ट्राइन देयर कैन बी चेंजेस. सो ऑटोमेटिकली व्हाट वी विल से, व्हाट आर द ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ये है केशव नंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनरेवा जी तो हमने पढ़ लिया. ये केस भी हमने डीपीएसपी के रिगार्डिंग पढ़ा है, मिनेर्वा मिल्स केस, इसमें भी वन ऑफ द ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो कि हमारी बेसिक डॉक्ट्राइन के बारे में बताता है. बट अगर हम प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1973 कौन सा केस आएगा? केशव नंद भारती के, जिसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई थी. सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर इज ए. So that's it for today. I hope you liked the video. Try, share and subscribe the channel and watch again and again all the 10 questions. Till now हमने total 40 questions कर लिए, और we will cover more new concepts and more cases about all these things. For more videos, like, share and subscribe the channel. Thank you.